اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے مومنین اور مومنات کو ابو تراب چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آج کا موضوع ہے امر بالمعروف کی ویلیو کیا ہے، امر بالمعروف ہے کیا چیز۔ مومنین کرام، جیسا کہ ابو تراب چینل سے مسلسل ہمارا یہ ارادہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے یا ہر روز ایک ویڈیو مومنین کے خدمت میں اسلامی تعلیمات کے مناسبت سے پیش کی جائے۔ امر بالمعروف ہے کیا چیز؟ امر بالمعروف کہتے ہیں امر یعنی حکم، بالمعروف یعنی اچھائی کی طرف بلانا، حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، نہیں یعنی منع کرنا، از منکر جس کا انکار کیا گیا ہے، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو دنیا کی یہ زندگی اور یہ دنیا میں انسان کا جینا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی نہیں ہے۔ چاہے وہ گھر کے حالات کو دیکھا جائے، باپ بچوں کو کسی چیز سے منع کرتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے، ٹوکتا ہے اور کسی چیز کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ جس سے راضی ہوتا ہے اسے کہتا ہے امر بالمعروف ہے، کہ اس سے وہ راضی ہے، اس سے کوئی اس کو نقصان نہیں ہے۔ نہیں از منکر وہ ہے جس سے والدین ناراض ہو جاتے ہیں یا گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں یا جس سے انسان کو نقصان پہنچے۔ امر بالمعروف انسان کے اپنے مکتب سے عشق کی علامت ہے۔ عشق کی علامت مکتب سے مطلب کہ اپنے مذہب، اپنے اسلام، اپنے جس پر ایمان رکھتا ہے اس پہ وہ عشق کی علامت ہے، یعنی محبت ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ اپنے مذہب پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا امر بالمعروف انسان کے عشق کی پہچان ہے، یعنی امر بالمعروف جو ہے لوگوں سے انسان کے عشق کی پہچان، یعنی ہمیں جتنی عشق ہوگی کسی سے اتنا ہی ہم اس کے چاہیں گے کہ وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ مثال طور پر باپ بیٹی کو یا بچوں کو چاہتا ہے، وہ عشق کرتا ہے تو برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ شوہر اپنی زوجہ کو روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب وہ محبت کرتا ہے۔ لیکن آج کل کی دنیا میں لوگ چھوڑ چکے ہیں کہ کسی کو بلانا اور کسی کو اچھائی روکنا، یعنی کسی کو اپنی اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ چیز لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب لوگوں کی فکر یہ بن چکی ہے کہ جو جہاں جدھر جا رہا ہے چلا جائے، ہم سے کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ سوچ مینٹلی بن چکی ہے، لوگوں کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ بھائی وہ اپنا دیکھیں گے، ہم اپنا دیکھیں گے، اللہ کے ہم مجھے حساب دینا ہے، وہ اپنا حساب دیں گے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ انسان جب اس سے عشق کرے گا، محبت ہوگا، پیار ہوگا تو ہی اس کو روکے گا۔ امر بالمعروف معاشرے کی سلامتی سے متعلق انسان کے ہمدردی، وفاداری اور دلچسپی کی علامت ہے۔ اگر معاشرے کی سلامتی چاہتے ہیں تو انسان کی ہمدردی بھی ہونی چاہیے، وفاداری بھی ہونی چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، یعنی امر بالمعروف ہوگا تو یہ تین چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گے، ہمدردی کے ساتھ وفاداری بھی ہوگی اور دلچسپی بھی ہوگی، یہی ایک علامت ہے۔ امر بالمعروف تولا و تبرع کی علامت ہے۔ امر بالمعروف سماج میں آزادی کی نشانی ہے۔ امر بالمعروف لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی علامت ہے۔ امر بالمعروف و بیداری فطرت کی علامت ہے۔ امر بالمعروف واجبات کی حاضری اور غیر حاضری ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہ رکھا۔ امر بالمعروف تمام واجبات کے نفاذ کی ضمانت ہے اور نہی از منکر تمام منکرات کے ترک کی ضمانت ہے۔ امر بالمعروف معاشرے میں نیک انسان کی حوصلہ افزائی ہے۔ کیا ہے؟ نیک انسان کی حوصلہ افزائی ہے۔
अगर हौसला अफजाई ना की जाए अमर बिल मारूफ में तो फिर इंसान के हौसले पस्त हो जाते, फिर इंसान सोचता है मैं छोड़ो हमें जे अमर बिल मारूफ नहीं करना है। अमर बिल मारूफ जाहिल इंसानों को आगाह करना है और मुतवज्जा करना है। नहीं अज़मुन कर बदकारों बदकिरदारों का काफिए हयात तंग करता है। क्या है? नहीं अज़मुन कर बदकारों का काफिए हयात को तंग करता है। अमर बिल मारूफ और वो नहीं अज़मुन कर मुआशरे की गाड़ी को चलाने और रोकने का वसीला है। अगर ये चीज नहीं हुई तो इंसान के जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती है। ये वालिदैन के अमर बिल मारूफ और नहीं अज़मुन कर हैं जो बच्चों की तरबियत की बुनियाद की तश्कील देते हैं। अमर बिल मारूफ ज़ईफ़ुल इरादा लोगों के लिए इत्मीनान व तक़वियत का सबब बनता है। अमर बिल मारूफ मैदान अमल में हाजिरी की निशानी है। यानी आप अमर बिल मारूफ नहीं अज़मुन कर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस्लाम के जो बताए हुए काम है उस मैदान से आप भाग चुके हैं, आप उस मैदान में नहीं है। जो कहा जाए कि अल्लाह जो पसंद करता है, नबियों को जो सबसे पहले काम दिया है उस काम में आप शरीक नहीं है, आप मैदान से भाग रहे हैं। इसका मतलब कि आप मैदान से खारिज हैं। अमर बिल मारूफ खुदा की तरफ से अहले ईमान को दिया गया वो हक व अख्तियार है जिससे वो एक दूसरे के आमाल और किरदार पर नजर रख सके। अहले ईमान के लिए हर एक को ये अल्लाह की जानिब से नहीं दिया गया अख्तियार कि वो किसी के ऊपर किरदार पर और अमाल पर नजर रखे, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे भी हैं जो इनके ईमान खुद कामिल नहीं है लेकिन लोगों के किरदार और अखलाक पर वो नजर रखे हुए हैं और उनको जीना मुश्किल कर देते हैं। तो लिहाजा किसी के अखलाक किरदार पर और अमाल पर नजर वही रखें जो अहले ईमान है। और जो अहले ईमान होते हैं वो किसी के किरदार को उछालते भी नहीं है और किसी के अमाल को लोगों के सामने बिगाड़ते भी नहीं और जाहिर भी नहीं करते हैं, और अहले ईमान होना शर्त है। नहीं अज़मुन कर मुआशरे के बाज़ अफराद के तक़वा की कमी को पूरा करने का सबब है। अगर नहीं अज़मुन कर जो है मुआशरे के बाज़ अफराद के तक़वे की कमी, जिनको कमी है तक़वे के माशरे में, जिनके तक़वे से दूर हैं, उनके लिए हुक्म ये है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें ताकि उनके तक़वे की कमी को वो पूरा कर सके, यानी अच्छाई की तरफ बुलाइए और बुराई से रोकिए। अमर बिल मारूफ मुआशरे को बालिदगी बख्शता है, नहीं अज़मुन कर मुआशरे को जवाल से निजात देता है। अमर बिल मारूफ इंसान के हुदूद व हुकूक का मुहाफिज है। मुआशरा खामोश मुआशरा एक मुर्दा मुआशरा है और खामोश इंसान सांस लेने वाले जमादात के मानंद हैं। इंसान को चाहिए कि सिर्फ सांस ही न ले बल्कि जो हुक्म है वो भी करता रहे। अमर बिल मारूफ नहीं अज़मुन कर दीनी गैरत और जिम्मेदारी के एहसास की अलामत और लोगों के मुश्किलात को अपनी ज़ाती मुश्किलात समझना है। ऐसा नहीं है कि भाई ये दीनी अरकान नहीं है, ये दीनी पहल नहीं है, हम क्या करें, हम जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि अमर बिल मारूफ नहीं अज़मुन कर दीनी गैरत जिसके अंदर होगी वो इस जिम्मेदारी को एहसास करेगा, एक्सेप्ट करेगा और लोगों में उस जिम्मेदारी को अख्तियार करके लोगों के दरमियान इस पे अमल करके दिखाएगा। और एहसास की अलामत है कि वो इस जिम्मेदारी को उठाए, लोगों के मुश्किलात को अपनी ज़ाती मुश्किलात समझे। अमर बिल मारूफ नहीं अज़मुन कर मुतअद्दिद ऐबों और गुनाहों के मुकाबले में एक किस्म की रूहानी हदबंदी है। ये एक रूहानी हदबंदी है, यानी बातिनी जो रूह है उनके उसको एक हद मुअय्यन कर देता है। वरना इंसान देखिए जो रूह जिनकी मर चुकी है वो उन हुदूद से कितना तजावुज कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। तो लिहाजा ये अमर बिल मारूफ जो है गुनाहों से रोकता है, अयूब से रोकता है और अयूब के मुकाबले में ये एक हद का काम करता है, एक बॉर्डर का काम करता है। अमर बिल मारूफ
और नहीं अनमुनकर। नहीं अनमुनकर एक किस्म का समाजी नज्म व ज़ब्त है, यानी शख्सी और नफसानी ख्वाहिशात को इज्तिमाई मसलहतों के पेश नज़र महदूद करना और हकीकत में ये लापरवाह अफराद के लिए एक किस्म की पाबंदी है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने गुनहगारों के गिरोह से पूछा, क्या तुम लोगों में एक आदमी रशीद यानी हिदायत याफ्ता नहीं है जो तुम्हें उन बुरे कामों से रोक सके? वो अमर बिल मारूफ नही अन मुनकर के जरिए मुआशरे के अंदरूनी मुश्किलात को हल करके बैरूनी दुश्मनों के साथ मुकाबला किया जा सकता है। हदीस शरीफ में आया है कि सबसे अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें बुरे कामों से रोके, और बदतरीन दोस्त वो है जो तुमको उसकी याददानी ना करे, यानी मना ना करे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो है जो मुझे मेरी कोताहियों और ऐब के बारे में याद दहानी करे। रवायतों में आया है कि मोमिन हमेशा अपने आमाल के बारे में चौकन्ना रहता है, चौकस रहता है, होशियार रहता है, यानी खुद अपने आप से हिसाब लेता रहता है। हकीकत में अगर हम खुद अपने आप से चौकस रहें, होशियार रहें और लोग बाहर से हमारे बारे में मोहतात रहें, मजमूई तौर से एक सियासी हुकूमती निज़ाम लोगों के खूबियों और नेक आमाल की हौसला अफजाई और बुरे कामों से रोकने की जिम्मेदारी संभाले तो हम सब से अच्छी उम्मत बन सकते हैं। जैसा कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, तमाम नेक आमाल हत्ता खुदा की राह में जिहाद भी अम्र बिल मारूफ के मुकाबले में समुंदर के पानी के मुकाबिल दहन की तरीके मानंद है। कहते हैं कि अम्र बिल मारूफ अगर नहीं और राह खुदा में जिहाद कर रहे हैं तो कहते हैं समुंदर के पानी के मुकाबिल में ऐसा ही है जैसे मुंह में थूक की तरी है, वो इसके मानन ये है। तो लिहाजा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बहुत सारी ताकीद, बहुत ज्यादा ताकीद है। लिहाजा लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं और बुराई से उनको रोकें। ये ना समझें कि ये उनकी औलादे हैं या उनके बच्चे हैं या उनकी फैमिली है तो हम छोड़ दें। जी नहीं, अगर शरीयत कहती है कि इस्लाम ये कहता है, खुदा ये चाहता है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में आप दामन झाड़ नहीं सकते हैं, सबकदोशी अख्तियार नहीं कर सकते हैं। ये भी वाजिब अमाल में से हैं और इसको अंजाम देना है। अगर कोई गाना सुन रहा है उसको मना करें, वरना अगर मना नहीं कर रहे हैं और गाना सुन रहे हैं तो आप भी उस गुनाह में शरीक हैं, यानी आपने उनको मना नहीं किया, नहीं मुनकर नहीं किया है। अगर कोई गुनाह किसी भी तरीके का अंजाम दे रहा है तो लिहाजा उसको रोकना वाजिब है और उसको अच्छाई के बारे में बताना या अच्छे रास्ते पे लाना या अच्छा हुक्म देना ये वाजिब है। हम इससे सबकदोश नहीं हो सकते हैं। तो लिहाजा हमें यह काम अंजाम देते रहना है और इस्लाम के हुक्म पे चलते रहना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि तबलीग दीन और मारिफ अहले बैत को आम करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अबू तुराब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस कार खैर में हमारा साथ दें और जज़ाकल्लाहु खैर। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।